हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है जयेश एंड आई एम अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अ स्टॉक मार्केट एनालिस्ट। भाई डायलॉग बाजी ठीक है लेकिन इसमें बहुत रिस्क है। रिस्क है तो इश्क। Alright, so first of all, I would like to congratulate every one of you who have cleared your CA finals and are now qualified chartered accountants, because becoming a chartered accountant is one of the biggest milestones in your life. So I would like to congratulate every one of you and to your family. So now वीडियो को शुरू करने से पहले I would like you to hit the subscribe button, because in coming days I'll be posting multiple videos where I'll be interacting with a few people who are working into different domain after being a CA, and those videos will answer many of your questions, like how to crack the interview of a particular domain, and what does the day look like in a particular job, the work culture, and many such things. So make sure you hit the subscribe button and press the bell icon. So today's video are particularly made for those people who are looking for starting their own practice post qualifying their exams. वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, बट मेक श्योर आप वीडियो को लास्ट तक देखें, बिकॉज आई हैव ट्राइड टू आंसर एज मैनी एज थिंग्स विच आर पॉसिबल बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस आउटलुक and my point of view so far. So this video I have divided in some parts which will address your different questions. तो चलिए शुरू करते हैं. Deciding your why is the very first step which you must know and be aware about. And if you ask me that why I started my own practice, वैसे तो इसके बहुत सारे कारण हैं, but there are majorly 3 reasons basis on which I took this decision. So the very first reason which I consider is being independent. Because if you are the one जिसे किसी और के अंडर काम करना पसंद नहीं है, if you are the one who likes to work on your flexible times, so these are the things which matters to me the most. And before this I was working with one of the big fours and working late there. You know that big fours में तो काफ़ी late आज तक working होती है, which I am not meant for. So yes, being independent is one such thing which I considered as one of the reasons to start the practice. And second reason is that I am very active into stock market. So मुझे उसको भी time देना पड़ता है, which I was not able to give when I was working with one of the big fours. So this was one of the reasons that I came into practice. And third reason is that if you are someone who wants to build things on your own, आप चाहते हैं कि आपका खुद का एक business हो, and being a chartered accountant, practice is one such things which you can start as your own business. And also I feel कि हर individual के different why हो सकते हैं. So just sit down, take a piece of paper and pen and decide your why first. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सारे लोगों को आता है कि हाउ टू स्टार्ट. तो इसमें बेसिकली बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं, बट मेजरली 3-4 सिनेरियोज होते हैं जिसके थ्रू आप अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं. एंड द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग इज स्टार्टिंग इंडिविजुअली, बीइंग अ प्रोप्राइटर. You can start on your own, starting your own proprietorship firm. Second is going into partnership with one of your friends, और आप 2-3 लोग फ्रेंड्स हैं जिन्होंने CA क्लियर करने का डिसाइड किया कि you can start your own practice. Then that is one setup. You can build a partnership firm by drafting a deed and starting your own CA practice under a partnership. And third structure इस आता है कि जैसे अभी कई सारी पुरानी फर्म्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि मुंबई में कोई पुरानी फर्म है जो कि 30 साल पुरानी फर्म है, दे हैव डिफरेंट ब्रांचेस इन डिफरेंट सिटीज़. एंड फॉर एग्जांपल यू आर फ्रॉम अ BTR टाउन एंड उनकी वहाँ पे ब्रांच नहीं है. Then what they do is they open up their branch and they look up to people who are willing to go into partnership with such people, जहाँ पे वो लोग अपनी ब्रांच खोलते हैं in their name, and you being the main partner of that branch, you start their practice in their name, you being the partner of that firm. एंड अभी सवाल ये आता है कि हाउ टू फाइंड सच पीपल हु आर लुकिंग फॉर डिफरेंट पार्टनर्स इन दिस अदर सिटीज़. सो इसमें एक तरीका यह है कि इंस्टीट्यूट पब्लिश देयर मेंबर्स जर्नल एवरी मंथ, एंड विच इज ऑल्सो सेंड टू यू ऑन योर email IDs, and you can also find one on the institute's official website. And in that members journal there is one section which is known as classified, which is mentioned at the last of this members journal. And in that classified sections, these firms who are looking for different partners in different cities for opening their branch, they post these opportunities, and you can reach out to those people who are looking for such partners. And by grabbing these opportunities also, you are able to get work in your city, and they provide you work. इसमें बहुत सारे different structures होते हैं, revenue sharing basis होती है, independent basis होती है. So based on the outlook of that firm, you can go into such kind of partnerships as well. And if you are feeling that इसके अलावा भी और कोई ऑप्शन है, then if you start your own practice under proprietorship,
and after that people get to know that you are a proprietor in that particular city. Then after knowing that, they call you that we are such firm and we want to expand our partnership in this particular city, and are you willing to merge your partnership proprietorship into our partnership. तो ऐसे these kind of opportunities are also available, and believe me, मुझे भी ऐसे calls आते हैं, and this is also one such things through which you can start your practice. And also they are looking for freshers as well. ऐसा नहीं है कि वो लोग केवल experience को look out कर रहे हैं, because they want the young blood to work for their firm now, and they definitely reach up to you, and this is one such thing which you can start. And अभी next question आता है कि when to start. So what I personally feel is that this is one of the important questions above all, because this is a game changer for everybody. And here I would like to quote one of the common ideologies which everybody holds, and 90-95% people इसी हिसाब से सोचते हैं कि initially after qualifying their CA exams, what they think is let's go into job for 1.5 year or 2 years say, and after that I'll switch into practice. And believe me, 90-95% लोग जैसा सोचते हैं कि मैं 1 या 2 साल बाद अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दूंगा जॉब में जाने के बाद, दे फेल टू डू दैट, बिकॉज यहाँ पर जो सबसे बड़ा मेजर रोल आता है वो आता है पे चेक्स का. बिकॉज से फॉर एग्जाम्पल यू बीइंग अ फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टार्ट एट दी एवरेज पैकेज ऑफ 10 lakhs, एंड आज से 2 साल बाद वो पैकेज समवेयर 13.5 lakhs का हो जाता है. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू विल बी रिसीविंग से फॉर एग्जाम्पल द सैलरी ऑफ 1 lakh rupees per month. Now starting that practice will again take you to that zero level, एंड जो वो कॉल आती है कि वहाँ जहाँ पे हम लोग 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं एंड अभी हम लोग वापस से एक जीरो पर आ जाएंगे, सो वहाँ पे एक बहुत बड़ी जो है साइकोलॉजी प्ले होती है. एंड मोस्ट ऑफ द पीपल फील दैट आई थिंक दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, एंड वहाँ पे they are not able to take the decision based on the paychecks. So I think that if you are willing to start your own practice, then I feel that today is the right time itself, because आप ये सोच रहे हैं कि आज से 2 साल बाद मैं अपनी प्रैक्टिस शुरू करूँगा, तो जो मेहनत आपको आज लगने वाली है वो आज से 2 साल बाद भी लगेगी, एंड जो मेहनत अगर आप आज लगा लेंगे तो शायद आज से 2 साल के बाद आपके पास काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो होगा क्लाइंट्स का इन वॉट एवर नीश यू आर वर्किंग और यू आर गोइंग फॉर अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस. एंड द मेजर थिंग इज द पे चेक. अगर आप आज से शुरू करेंगे तो जीरो से शुरू करने में आज आपको उतनी डिफिकल्टी नहीं होगी जो कि आज से 2 साल बाद होगी जब आप लाख रुपए महीना कमा रहे होंगे. यही एक आइडियोलॉजी मेरे साथ भी प्ले हुई थी, एंड but I took the decision very early. After working for say 5.5 months, I resigned from one of the big fours and I started my practice. But at that point of time, this psychology played a lot, and it took me a week to take that decision that whether should I start it or not. But yes, since I was very firmed on my decision based on my reasons why I need to start my own practice, I started it. But I would also urge you that if you are willing to start your practice, start it today. Because जो चीज़ आप सोच रहे हैं कि आप आज से 2 साल बाद शुरू करेंगे, believe me, जो डिफ़िकल्टी आपको 2 साल बाद आएगी वो डिफ़िकल्टी आज नहीं आएगी. एंड स्टार्ट टुडे इटसेल्फ. एंड अभी दूसरा एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट विल बी द इनिशियल कॉस्ट ऑफ स्टार्टिंग योर ओन प्रैक्टिस. But this is a very dynamic question which will apply upon person to person कि आप किस तरीके का ऑफिस बनाना चाहते हैं. बट एज पर माई एक्सपीरियंस एंड माई पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप एक डिसेंट ऑफिस खोलना चाहते हैं एक सिंगल रूम के अंदर बाय रेंटिंग एनी शॉप इन योर नियर बाई एरिया जहाँ पे आपको लगता है कि पब्लिक की रीच काफ़ी होगी, तो इट विल समवेयर कॉस्ट यू अराउंड 1 लाख रुपीज़. 1 लाख रुपए में आपका एक अच्छा डिसेंट ऑफिस बन सकता है. बिकॉज आई ऑल्सो स्टार्टेड विद वन ऑफ द डिसेंट with one decent office, and the cost in infrastructure, in technology and everything which I incurred is somewhere near to 1 lakh rupees. And फॉर्म रजिस्ट्रेशन के जो चार्जेस होते हैं these are very nominal charges, and so yeah, everything goes around in 1 lakh rupees which will help you to set up office. But yeah, यहाँ पे भी मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि let's start the practice by being at home only. So I would not recommend you to start your office at your home only. Just rent a place जहाँ पे एक decent आपका एक ऑफिस बन जाए, ताकि which will be accessible for your clients. So सबसे बड़ा जो चैलेंज आपको आएगा that will be और इनकम.
एंड व्हाट आई फील इज़ कि अगर आप ना केवल एक CA प्रैक्टिस बल्कि आप कोई दूसरा बिजनेस भी अगर शुरू करते हैं तो इनिशियली जो हमें एक चैलेंज आता है इज़ अबाउट आवर इनकम ओनली, क्योंकि अगर हम इसके अदर देन दिस ऑप्शन देखते हैं तो वो होता है कि जॉब। अगर हम एक जॉब में जाते हैं तो समवेयर हम लोग को एक एवरेज 10 लाख पर एनम का पैकेज मिलता है, बट दिस इज़ नॉट द केस इन प्रैक्टिस। यहाँ पे आप लोग स्क्रैच से बिल्ड करते हैं, जहाँ पे आपकी इनकम जो होती है वो इनिशियली काफ़ी लिमिटेड होती है। सो दिस इज़ वन सच चैलेंज विच यू नीड टू जिसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। एंड आई फील कि अगर आप एक बिजनेस में जा रहे हैं देन तो रिस्क वहाँ पे हमेशा होती ही है, एंड यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस चैलेंज। नेक्स्ट जो दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो होते हैं क्लाइंट्स। आई नो मोस्ट ऑफ द पीपल ये लोग ये सोचते हैं कि हाउ विल वी गेट द क्लाइंट्स, बट बिलीव मी, अगर आप कोई चीज़ खोलते हैं, इफ़ यू स्टार्ट योर ओन प्रैक्टिस, क्लाइंट्स ऑटोमेटिकली कम्स टू यू। अगर आप इनिशियली उन्हें एक काम करके देते हैं तो 2 काम 3 काम 4 काम वो क्लाइंट आपको ला करके देता ही देता है। उसके बाद दूसरा होता है आपका नेटवर्क। आप अपने रिलेटिव्स में जाइए, आप अपने डेफिनेटली यू विल बी प्रिंटिंग योर ओन कार्ड्स। आप कोई भी एक इवेंट में जा रहे हैं तो ट्राई टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। वहाँ पे उन लोग को अपना कार्ड दीजिए ताकि दिस इज़ ऑल अबाउट माउथ पब्लिसिटी। जितना आप अपने आसपास के लोगों को बताएंगे दैट यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड यू प्रोवाइड अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ सर्विस, सो दे विल बी होल्डिंग योर कार्ड्स, सो दे विल बी knowing that yes, this is the person and we can take such service from this kind of person. So definitely मैंने भी इसी तरीके से रीच आउट किया है लोगों को जितना भी टाइम मुझे हुआ है प्रैक्टिस खोलने के बाद, एंड yes, it works a lot. People reach out to you for some particular kind of work, and इसी फिर आप एक क्लाइंट सर्व करते हैं किसी एक पर्टिकुलर सर्विस के लिए, देन दैट सेम क्लाइंट कम्स टू यू फॉर सम अदर काइंड ऑफ सर्विसेज, एंड बाय दिस यू एक्सपैंड योर पोर्टफोलियो ऑफ क्लाइंट्स, एंड इन दिस वे यू कैन कम्प्लीटली ग्रो ऑर्गेनिकली। दूसरी एक चीज़ इसमें आप और कर सकते हैं कि जो मैं करता हूँ, आई विल पर्सनली शेयर इट विथ यू। जैसे कि आई हैव माई ऑफिस इन द विसिनिटी ऑफ 2 and 3 बैंक्स, सो व्हाट आई डू दैट आई रेगुलरली विजिट दीज बैंक्स। मैं वहाँ के ब्रांच मैनेजर से जाके मिलता हूँ, मैं वहाँ के क्रेडिट मैनेजर से जाके मिलता हूँ, एंड आई कीप मीटिंग देम सो दैट दे आर अवेयर दैट इफ एनी क्लाइंट रीच आउट टू देम एंड दे हैव एनी सर्टेन पर्टिकुलर काइंड ऑफ सर्विस विच दे वांट टू टेक इट फ्रॉम अ CA, देन आई शुड बी देयर टॉप ऑफ देयर हेड। एंड ऐसे कई सारे रेफरेंसेस मुझे आते हैं इन बैंक्स के थ्रू भी, दैट इफ़ एनीबडी वांट्स टू मेक अ CMA डेटा, किसी को ITR फाइल कराना है, किसी को दूसरी काइंड की सर्विसेज, इफ एनीबडी वांट्स टू रजिस्टर देयर ओन कंपनी, किसी को GST रिटर्न्स फाइल करवाने हैं। सो येस, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ दिस वे, एंड यू कैन नेटवर्क आउट टू डिफरेंट पीपल इन टू डिफरेंट डोमेन। जो आपके पुराने फ्रेंड्स हैं जो who are there into practice, go meet them, call them regularly and ask them if any difficulty you are facing. एंड इसी तरीके से अगर आप धीरे धीरे ट्रेडिशनली शुरू करते हैं, आपकी एक नीश क्रिएट हो जाती है। इससे फॉर एग्जांपल आपने ट्रेडिशनली एक प्रैक्टिस शुरू करी थी, बट आफ्टर वर्किंग फॉर फ्यू मंथ्स एज वेल, यू आर एबल टू फिगर आउट दैट येस आई विल बी मैं ट्रेडिशनल प्रैक्टिस तो करूँगा ही, साथ में आई थिंक आई हैव मोर फोकस टुवर्ड्स फाइनेंस साइड। तो ऐसे करके आप अपने एक नीश क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, एंड नेक्स्ट टाइम अगर आपके कम्युनिटी में किसी को फाइनेंस साइड का, से फॉर एग्जांपल यू आर क्रिएटिंग योर नीश इनटू फाइनेंस, सो अभी एनीबडी इन योर नेटवर्क वांट्स टू टेक एनी काइंड ऑफ सर्विसेज इन फाइनेंस सेक्टर, फाइनेंस साइड, सो दे विल डेफिनेटली रीच आउट टू यू, एंड इस तरीके से फिर आपका काम आगे बढ़ता है। सो येस, दिस वॉज दिस ऑल वीडियो अबाउट, एंड फाइनली मैं आप सभी को ये कहना चाहूँगा कि मैं भी आपकी जैसे ही एक सिचुएशन में था जहाँ में मैं भी अपने CA फाइनल्स के एग्जाम क्लियर किए थे, एंड आई ऑल्सो यूज टू थिंक अबाउट स्टार्टिंग माई ओन थिंग, एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट स्टार्टिंग योर ओन प्रैक्टिस, बिकॉज जब आप प्रैक्टिस में आते हैं तो इसके साथ साथ आप बहुत सारी चीज़ें दूसरी भी कर सकते हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट इज़ वन सच थिंग विच आई पर्टिकुलरली डू। आपका भी कोई दूसरा का इंटरेस्ट होगा, फाइंड दैट इंटरेस्ट, आप अपनी प्रैक्टिस के साथ साथ वो भी करिए। एंड अभी रिसेंटली जब से GST आया है, आई मीन 2017 में जब से GST आया है, तो मार्केट में GST को लेकर भी बहुत सारा काम है, एंड एज यू आर अवेयर दैट अभी डायरेक्ट टैक्स कोड DTC भी आने वाला है, एंड वी बीइंग द यंग ब्लड of this nation, of this economy, we can leverage out such kind of opportunities in market, and these are the I will definitely say that these are the opportunities which you should look up to and start your CA practice. एंड जो पॉइंट मैंने वीडियो में मेंशन किया था कि इफ़ यू आर थिंकिंग टू स्टार्ट योर ओन प्रैक्टिस, स्टार्ट इट टुडे। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं जॉब करने के बाद करूँगा, देन बिलीव मी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आने वाली है उस टाइम पे वो डिसीजन लेने के लिए, बिकॉज टुडे अगेन आई विल रीइटरेट द सेम थिंग, टुडे इज़ द राइट टाइम, बिकॉज यहाँ पे कोई भी परफेक्ट टाइमिंग नहीं होती है। एंड येस,
क्लाइंट्स विल कम टू यू डेफिनेटली। एंड अगर इसके बावजूद भी अगर आपकी बहुत सारी कुछ क्वेरीज हैं जो कि अनआंसर्ड रह गई हैं, एंड इफ़ यू वांट टू रीच आउट टू मी, आई वुड बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ दे रहा हूँ, मैं अपना लिंक्डइन का एड्रेस छोड़ दे रहा हूँ, एंड यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू मी एट एनी टाइम। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प। एंड वंस अगेन आई विल से दैट हमने हमारी जो सीए की जर्नी में सीखी हैं चीज़ें कि पेशेंस हमने सीखा है, रिस्क टेकिंग हमने सीखी है, एंड फेलियर से आगे बढ़कर वापस से नेक्स्ट स्टेप्स हमने लेना सीखा है। सो स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस, स्टार्टिंग योर ओन सीए प्रैक्टिस इज़ ऑल्सो वन सच थिंग। एंड बिलीव मी, एक बार आप शुरू करेंगे चीज़ें आपके लिए बनने लगेंगी, एंड देन एंड देयर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते जाता है, एंड यू ग्रो very much, and you go ahead in this journey. And yes, this is all about that, how to start your own CA practice and what all challenges will be facing. And also अगर आपके कोई different questions है तो please mention in the comment section and reach out to me, and I wish you all the best, and congratulations to once again on clearing your CA final exams, and all the best, and do wonders for your family. Har Har Mahadev.